rejected the Indian PCI security. Now, what happened in the court today? What is the status of your complaint? See, today on 17th of August 2026, Shri Rahul Gandhi, Member of Parliament Lok Sabha from Raebareli constituency and Honorable Leader of the Opposition Lok Sabha, had approached the Honorable Supreme Court of India and filed a SLP against me, seeking staying of the proceedings going on before Honorable Allahabad High Court Lucknow bench and seeking transfer of his case, which is going on before High Court Lucknow, to Delhi High Court. So I appeared through video conference in the matter because there was some procedural issue. I was not issued the pass to go inside the court physically. Hence I have placed my point that I am placing strong objections to this case. As the matter is highly sensitive and there is severe security threat to me, I don't want to mention anything in detail now. I will be appearing in person in next date of hearing, and whatever complaints I have filed and whatever documents I have submitted before the High Court, as matter is highly sensitive, I don't want to disclose any content. I will place before the Honourable Court, and I welcome that the Honourable Supreme Court has given me an opportunity to appear as a respondent in person now in this matter. It is a highly sensitive matter. It is for the first time in the history of India post-independence last 80 years that any such disproportionate asset case has been filed against any member of the Nehru Gandhi family. First time ऐसा हुआ है. This is what history reads from my side. But the Supreme Court today deferred the hearing in High Court. What is your reaction to that? Sir, I welcome the order of the Supreme Court. It is a welcome step that hearing has been deferred by the Supreme Court, so that whatever further directions will be given by the Honourable Supreme Court, I will comply as a petitioner in the High Court, and same I will try to convey to the Honourable High Court whatever the order copy is given. And since no date was informed in the court hall, we will wait for the matter to be uploaded in the final judgment on. हिंदी में बता दीजिए कि आपने क्या एलिगेशन कंप्लेंट्स दिए हैं और कोर्ट ने आज रेफर कर दिया हाई कोर्ट के हियरिंग को, आप क्या कहेंगे? जी, आज 17 अगस्त 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने माननीय सांसद रायबरेली लोकसभा सांसद और माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, इन्होंने अपनी याचिका दायर की थी मेरे खिलाफ कि जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में जो हमने उनके आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में हमने याचिका दर्ज की थी, उसको स्टे किया जाए और वो जो सुनवाई वहाँ हो रही है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में, उसको दिल्ली हाई कोर्ट को याचिका को ट्रांसफ़र किया जाए. तो इस मामले में मैं अपेयर हुआ था बीसी के माध्यम से, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रवेश करने के कोई पास के प्रोसीजर एस्पेक्ट था वो हो नहीं पाया मुझे, क्योंकि बहुत देरी से मुझे मामला पता चला. मैंने भी केविट फाइल किया था ऑनलाइन, तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे एक मौका प्राप्त कराया है कि अगली सुनवाई में आके ऑब्जेक्शन फाइल करें और जो इस केस के बारे में डिटेल बताएं, क्योंकि मामला अति गोपनीय है और बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैं इसकी जानकारी नहीं देना चाहता क्या है. और ये पहली बार इतिहास में 80 साल में ऐसा हुआ है कि आय से अधिक संपत्ति कोई मामला माननीय जो राहुल गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ कोई दर्ज किया है. बहुत अहम ये मामला है, इसकी बहुत गंभीर स्वरूप की इसमें आरोप हैं, तो बहुत सेंसिटिव होने के नाते मैं सिर्फ इतना बता पाऊँगा. अगली जो सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तारीख फिक्स जब तय होगी, मैं खुद एज रेस्पॉन्डेंट इन पर्सन अपेयर होगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के सामने मैं पिटिशन इन पर्सन बहस कर रहा हूँ. बहुत लंबी बहस हुई माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने, क्योंकि मामला अति गोपनीय है और सेंसिटिव है, तो इसलिए इन चैम्बर प्रोसीडिंग कंडक्ट किया जा रहा है. और शायद आप सबको याद होगा कि 2026 की जनवरी के महीने में मेरे ऊपर कम से कम 300 लोग वकील भी थे, रायबरेली में हमारे ऊपर हमला हुआ था. और मेरा सुरक्षा को लेके बहुत बार मैंने भारत सरकार गृह मंत्रालय को हमने याचिका दिया है कि उसको Z+ कैटेगरी CRPF सिक्योरिटी को बढ़ाए, तो क्योंकि अब तक नहीं बढ़ाया था, इसलिए मामला बहुत सेंसिटिव होने के कारण और कोर्ट हॉल में ही रायबरेली के कोर्ट विशेष MPML न्यायालय में हमला हुआ था, इस कारण से हमने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड विटनेस भी हूँ मामले में, कि सुनवाई इन चैम्बर किया जाए. ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोर्ट के प्रोसीजर में भी है. लेकिन आज डेफर कर दिया है, अब हियरिंग नहीं होगी वहाँ पे, क्या कहेंगे? डेफर हुआ है, हम स्वागत करते हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसको हम जरूर पालन करेंगे, क्योंकि मामला अति गोपनीय और सेंसिटिव है और सीरियस है. ये सब जो भी है, क्योंकि याचिकाकर्ता मैं हूँ मामले में. माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आज उन्होंने मुझे नोटिस नहीं दिया था, क्योंकि अभी फिलहाल मिला है, और मेरे पास पिटीशन का कॉपी भी नहीं था जो उन्होंने फाइल किया माननीय श्री राहुल गांधी जी ने. उसको मिलने के बाद सारा मेरे ऑब्जेक्शन मैं फाइल करूँगा, और जो भी न्यायालय के सामने बात रखना है, सीधा मुद्दा जो है ये सत्य जो भी मामला है में है
वो बाहर आना चाहिए, एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। बहुत मुझे विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी सीबीआई से पूछा कि आपने क्या सुओ मोटो लिया इस मैटर को, तो क्या तथ्य है, क्या बेसिस है जिस पे आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं? जी बहुत कुछ मैटर्स हैं, ग्राउंड्स में आपको सीधा बता नहीं सकता क्योंकि ये कानूनी सबजुडिस मैटर है। बस इतना आपको मैं बताने के लिए आया क्योंकि माध्यम के मित्रों ने मुझे बुलाया इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए, बस इतना ही जानकारी मैं दे रहा हूँ। आपके बारे में ये कहा गया कपिल सिब्बल के द्वारा कि आप एक सीरियल तरीके से केस फाइल करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ और पॉलिटिकली मोटिवेटेड जी देखिए, मैं तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और तीसरी पीढ़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयं सेवक हूँ। 10 साल की उम्र से मैं आरएसएस की शाखा अटेंड कर रहा हूँ, तो हम खानदानी तौर पे पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक हैं। ऐसे नहीं कि कल परसों से हम मिले हैं और केस हमने कर दिया, नहीं। और बहुत सारे केसेस मैंने कर्नाटक और दक्षिण भारत और अनेक जगहों में मैंने किया है, कम से कम 2000 केसेस मैंने किए हैं। ये सब चीज़ों की जानकारी सारे भारत सरकार की अन्वेषण एजेंसी, जांच एजेंसियों के पास है। मेरा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। आज तक एक भी जो पिटीशन मैंने दाखिल किए, आज का मैंने दाखिल किया मान्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, एक भी पिटीशन मेरा डिसमिस नहीं हुआ। विघ्नेश शिशिर, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश।